Yes. A very good morning. So we have finished 5.1, 5.2 yesterday. So one part is left, that is probability. So let us start, and within 2 days we will do that playing with numbers. Hanji Kritika. Yes. Ma'am, not audible. Please wear mic. Now see. Am I audible? Okay. चलिए, सो प्रोबेबिलिटी अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ही मैं करवाऊंगी कि आपको एक एक टर्म बाय टर्म। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी का जो हमने फॉर्मूला किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। This is the formula for probability, number of favorable cases over total number of cases. Then we did probability of an event always lie between 0 to 1. Minimum probability is 0, maximum probability is 1, and it lies between 0 and 1. 0 से कम probability possible नहीं है, माइनस वाली probability कभी भी नहीं होती, and 1 से ज्यादा वाली कभी नहीं होती। ठीक है? Then we learn that probability of sure event. Sure event means sun rises in the east. There are 30 days. There are 7 days in a week. There are 4 weeks in a month. They all are sure event. Sure event की probability 1. Probability of impossible event. Which cannot be possible. That means, for example, there are 13 months in a year. It's not possible. There are 10 days in a week. It's not possible. These are called impossible event, and probability of impossible event is always 0. Right? So first of all, let us do some questions related to coin. सबसे पहले coin से related हम question करेंगे. तो coin का हमने sample space सीखा था. When a coin is tossed once, sample space is HT. When it is tossed twice, HH, HT, TH, TT, HH, HT, TH, TT. And when the coin is tossed 3 times, that means thrice, then the sample space is HH के साथ H, HH के साथ T, TH के साथ H, TH के साथ T, HT के साथ H, HT के साथ T, TT के साथ H, TT के साथ T. This is the sample space when a coin is tossed 3 times. आपको 2 वाला अगर आता है तभी आप 3 वाला लिख पाओगे. तो 2 वाला मैंने याद करने का मेथड बताया हुआ है, HH, HT, TH, TT, ऐसे याद करना है, HH, HT, TH, TT. तो हर एक नंबर को उठाते जाओ, उसके साथ H, उसके साथ T, हर एक मेंबर को उठाया, उसके साथ H, उसके साथ T, फिर अगले मेंबर को उठाया, उसके साथ H, T एंड सो पर्टिकुलर मेंबर्स को उठाते हुए उसके साथ. ठीक है? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. A coin is tossed once. Find the probability of getting 1 head. Probability of getting 1 head. अब देखो यहाँ पे आपके पास जब एक कॉइन वन टाइम टॉस हुआ तो टोटल आउटकम आपके पास कितनी हो गई? 2. ठीक है? तो आप फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस. सो यू विल राइट इट लाइक दिस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस. सो यहाँ पे फेवरेबल 1 हेड है तो 1, टोटल केसेस 2, 1 over. ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग, 2 coins are tossed, find the probability of getting 1 head. मैंने 2 coins वाली करवाने लगी हूँ. Probability of getting 1 head. 1 head किस किस में है? इसमें ये वाला 1 head वाला, ये वाला 1 head. ठीक है? सो फेवरेबल केसेस 2 हो गए, टोटल 4 हैं. सो दिस इज 1 head. अब 3 coins में से करते हैं एक क्वेश्चन.
coin is tossed 3 times, find the probability of getting 3 heads. Probability of getting 3 heads. Probability of getting 3 heads. 3 heads कितनी बार आ रहे हैं? सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं. तो favorable case is 1. Total is 8. So 1/8 is the answer. So these kind of questions you can see that they are based on the you can say coin sample space. Coin के sample space से based आपको ऐसे questions आ सकते हैं. So now let us discuss the sample space of dice and the corresponding questions. चलिए. Dice. When a dice is thrown once, what is the sample space? 1 to 6, all the numbers. This is the sample space when a dice is thrown once. Let us do the questions based on it. Probability of getting even number. इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6. फेवरेबल 3, टोटल 6. So the answer is 1/2. So probability of getting even number, the answer is 1/2. Find the probability of getting odd number. Odd number कौन कौन से हैं? 1, 3 and 5. Question number 3rd. This is probability of getting odd number. This is 3/6. This is 1/2. Third question I am discussing. Find the probability of getting prime number. Probability of getting prime number. अब prime number इसमें से कौन कौन से हैं? पूरे सीक्वेंस में से अगर हम prime number की बात करें 2, 3 and 5, they are the prime numbers. So favorable cases for the prime numbers is 3, total is 6 and the answer is 1/2. Suppose the question is find the probability of getting even prime number. Even prime. अब आपको पता है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास उनमें से 1, 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है विच इज इवन प्राइम नंबर. रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स दे ऑल आर ऑड. ठीक है, सिर्फ 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है विच इज रिगार्डेड एज इवन प्राइम नंबर. सो इवन प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1/6. दिस इज द फेवरेबल केसेस फॉर इवन प्राइम. Then next question I am discussing, find the probability of getting multiple of 3. Getting multiple of 3. अब आप इसमें से देखो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, एक 6 है. There are 2 multiples. Total case is 6. 1/3. Suppose the question is find the probability of getting a number greater than 6. Probability of number greater than 6. 6 से बड़ा कोई नंबर है इसमें सैंपल स्पेस में? there is no number which is greater than 6. so what it means? favorable cases is 0. so greater than 6 के लिए हमारा favorable case हो गया 0/6, that is 0. और ऐसे इवेंट को क्या कौन सा इवेंट बोलते हैं? impossible event. such kind of event is known as impossible event where the probability comes out to be 0. we call it to be impossible event. Suppose the question is probability of getting number less than equal to 6. less than equal to 6 मतलब कि 6 से less than भी है और 6 के equal भी ले सकते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे 6 से less हैं और equal भी 6 के हैं. तो favorable 6, total 6, 1. और आप कह सकते हो अगर ऐसे आए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6. अब आपने इक्वल टू 6 नहीं लेना, 6 से छोटा, क्योंकि 6 तो 6 के इक्वल हो गया, वो तो 6 से स्मॉलर हुआ ही नहीं. तो हम लेस देन 6
में 6 को नहीं लेंगे, लेस देन इक्वल टू 6 में 6 को लेंगे। सो लेस देन 6 में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं सॉरी, लेस देन 6 में 5 नंबर है, 5 4 3 2 1, this is 5 by 6. Then next is probability of getting a number greater than 3, greater than 3, 3 से बड़ा। आप देखो कौन कौन से नंबर 3 से बड़े हैं, 4 5 6, so there are 3 numbers which are greater than 3, so 3 over 6, that is 1 by 2. Suppose the question is probability of getting a number greater than equal to 3, greater than equal to 3, इसमें आपने 3 को भी लेना है, इक्वल भी आ गया ना तो फिर 3 को भी लोगे। 3 4 5 6, 4 numbers greater than equal to, this is 2 by 3। ठीक है, ये हमारा हुआ डाइस पे बेस्ड हमें कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, डाइस हो गया हमारा, कॉइन हो गया, नाउ आई एम डिस्कसिंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस। सो कार्ड्स का सैंपल स्पेस हमने क्या किया था, 52 टोटल कार्ड्स, 26 रेड, 26 black. 26 red are categorized into 2 categories. 13 clubs and 13 diamonds. 13 hearts. ठीक है, and 13 black, they are categorized as 13 clubs and 13 spades. Then we we have done aces, 4 aces in a pack of cards, जिसको आप A का कार्ड बोलते हो, that are the aces. So 4 aces are there. Four aces, then 4 jacks plus 4 king plus 4 queen, that is 12. 12 are the face cards. 12 फेस कार्ड्स होते हैं। 4 जैक में एक जैक हार्ट का, एक आपके पास डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का। इसी तरह से 4 क्वीन में एक क्वीन आपके पास हार्ट की, एक डायमंड की, एक क्लब की, एक स्पेड की। सिमिलरली 4 क्वींस में एक क्वीन, 4 किंग में एक किंग हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए। और आपको पता है 4 जैक्स में 2 ब्लैक होंगे 2 रेड, सिमिलरली 4 किंग में 2 ब्लैक 2 रेड, एंड 4 क्वीन में 2 ब्लैक और 2 रेड, यानी कि आधे ब्लैक हो गए आधे रेड हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने रेड फेस कार्ड्स कितने आप कहोगे 6, और ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं 6। लेट अस डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। देखो 4 क्वींस होती है पैक ऑफ कार्ड में, बट उसमें से डायमंड की क्वीन सिर्फ एक ही है, एक हार्ट की, एक स्पेड की है ना, एक यू कैन से क्लब की है, बट डायमंड की क्वीन एक ही है। तो 1 टोटल 52, 1 over 52. Suppose the question is find the probability of getting red king. Red king कितने होते हैं? There are total 4 kings, 2 are black and 2 are red. So red king are 2, so the favorable cases is 2 and total is 52. This is 1 over 26. Then probability of getting, you can say face card. Face card. There are total 12 face cards over 52. So this will be 3 by 13. Then probability of getting red face card. अब टोटल 12 फेस कार्ड हैं, उसमें से 6 रेड एंड 6 ब्लैक है, तो रेड फेस कार्ड का नंबर क्या हुआ 6।
3/26. सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड आ जाए, ब्लैक फेस कार्ड, तो आपको पता है टोटल 12 में से आधे ब्लैक हैं आधे रेड हैं, तो इसका मतलब ब्लैक फेस कार्ड भी हमारे पास 6 हो गए, सेम प्रोबेबिलिटी होगी 6/52 एंड द आंसर इज 3/26. सपोज द क्वेश्चन इज find the probability of getting red card. अब कितने रेड कार्ड हैं? टोटल 26 रेड कार्ड हैं, ठीक है, तो फेवरेबल केसेस 26, टोटल 52. दिस इज 1/2. 26 रेड कार्ड्स है ना, तो फेवरेबल आपके पास 26 हो गए, टोटल 52 हो गए, सो आंसर कितना आ गया? 1/2. ऐसा आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ यू कैन से क्लब, क्लब का एक ही किंग है, ठीक है, इस तरह से रेड किंग, ब्लैक क्वीन, रेड फेस कार्ड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 3? थ्री नंबर पैक ऑफ कार्ड्स में कितनी बार होता है? एक ही बार होता है. 1 से लेके 52 तक एक एक नंबर ही है. सो फेवरेबल केस 1, टोटल 52. एक और क्वेश्चन करवाती हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और रेड. जयंत एक मिनट लेती हूँ आपका डाउट, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी जयंत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम 3 नंबर मैम 4 टाइम्स नहीं आता, 4 अलग अलग कलर में, मतलब मैम डायमंड, स्पेड, क्लब, मैम 4/52 आएगा, फिर मैम वो 13 के टेबल में नहीं कट होगा? हाँ हाँ ठीक है, 4 बार ही आता है. हर नंबर 4 बार आता है. 13 नंबर है टोटल, हर नंबर 4 बार आता है, तभी 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है बेटे, 4 ही आएगा. बिल्कुल ठीक. नाउ कम टू नेक्स्ट, किंग और रेड. अब इसमें ना ध्यान से मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए इकट्ठे लिखे हैं ताकि आपको डिस्टिंक्शन करके बता पाऊं. किंग और रेड एंड सेकंड इज किंग एंड रेड. मान लो मैंने आपकी क्लास में से बच्चों को भेजा, वैसे आपकी क्लास ही है जो स्कूल बच्चे नहीं आते, अदरवाइज 8th बी अदर क्लासेस, अदर सेक्शंस ऑफ 8th देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू स्कूल. आपकी क्लास ही घर बैठी हुई है बस. चलो एनी हाउ, किंग और रेड. मान लो मैंने आपको बोला कि अपनी क्लास में से किसी ऐसे बच्चे को बुला के लाओ जो या तो इंटेलिजेंट हो या फिर शरारती. तो आप क्या करोगे? आप एक एक बच्चे को देखोगे, ये शरारती है तब भी चलेगा, इंटेलिजेंट है तब भी चलेगा. मतलब उसमें एक क्वालिटी हो तो आप उसको ले आओगे, क्योंकि मैंने और लिख दिया, मैंने कहा या तो इंटेलिजेंट हो या शरारती हो. इसी तरह से या तो कार्ड किंग हो या रेड हो, किंग या फिर रेड, दोनों में से एक क्वालिटी भी होगी, हम कार्ड को ले लेंगे. हम फेवरेबल केसेस बनाते हैं. कितने किंग होते हैं? 4 किंग प्लस रेड कार्ड कितने होते हैं? 26. अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, रेड कार्ड हमारे पास 26 हैं, पर उसमें तो 2 रेड किंग भी तो आ ही रहे हैं. 2 रेड किंग आ रहे हैं ना, वो पहले जा चुके हैं इधर. 2 रेड किंग ऑलरेडी उधर शिफ्ट हो गए थे, तो बचे कितने यहाँ पे? 24. तो रेड और किंग के लिए केसेस कितने हो गए? 28. दोबारा देखो, किंग और रेड कार्ड में एक स्पेशलिटी हो, कार्ड को हम फेवरेबल मान लेंगे. तो 4 किंग होते हैं, आई एम राइटिंग इट 4 प्लस रेड कार्ड आर 26 in number, but out of those 26, 2 red are already shifted, already coming with the king. किंग में 2 रेड किंग आ चुके हैं, तो 2 रेड कार्ड तो वहीं पे आ गए. बचे कितने रेड कार्ड? 24. तो दिस इज 28. फेवरेबल केसेस 28, टोटल 52. अब आ जाइए किंग एंड रेड. जब हम किंग एंड रेड की बात करते हैं, तो अब मैं आपको बोलूंगी कि अपनी क्लास में से किसी ऐसे बच्चे को बुला के लेके आओ जो इंटेलिजेंट भी है और एंड शरारती भी है, मतलब जिसमें दोनों क्वालिटीज हो. तो आप उस बच्चे को उठा बुलाओगे जो इंटेलिजेंट और शरारती दोनों है. अगर मैं लिखूं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज किंग एंड रेड. किंग एंड रेड मींस कार्ड में दोनों क्वालिटी है, कार्ड किंग भी है, कार्ड रेड भी है. तो ऐसा कार्ड जो किंग भी है और रेड भी है, 2 ऐसे कार्ड्स होते हैं which is king as well as red. There are 2 such cards which are king as well as red.
So the probability is 1/26, right? So ये हुआ हमारा कार्ड्स पे बेस्ड. नाउ हम करेंगे कुछ नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस. जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन लिखने लगी. A number is selected randomly from the numbers 1 to 20. Find the probability of getting perfect square. Square root chapter किया. Perfect square are those which can be written as square of certain number. 1 is a perfect square, 4, then 9, then 16. तो 1 to 20 के बीच में फ्रॉम लिखा हुआ है. अगर लिखा होता है बिटवीन 1 to 20, फिर हमने 1 को 20 को नहीं लेना. बट अगर लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 20, तो फिर हमने 1 भी लेना है और 20 भी लेना है. तो 1 तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रॉम से शुरू हो रहा है. अगर बिटवीन हैड इट बीन बिटवीन 1 to 20, वी वुड नॉट हैव टेकन 1, राइट? तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज फ्रॉम 1 to 20. So this is 1, 4, 9, 16. तो 4 are the favorable cases and total 1 to 20 तक कितने नंबर है? 20. This is 1/5. Next, probability of getting multiple of 2. 1 to 20 के बीच में 2 के कितने मल्टीपल्स आते हैं ये हमें देखना पड़ेगा. Let us see 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 multiples of 2 from 1 to 20. So we will write the favorable cases to be 10 and the total cases to be 20. So this is 1/2. ये आपने इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है, याद रखना है इस चीज को कि यहाँ पे इस पे ध्यान देना है कि जो पेपर में लिखा हुआ है वो बिटवीन तो नहीं है. अगर बिटवीन 1 to 20 होता फिर 1 नहीं आना था. फ्रॉम 1 to 20 में आपका 1 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा. यस कृतिका, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? कृतिका मैम फिर से समझा दो प्लीज. कौन सा फ्रॉम और बिटवीन का कॉन्सेप्ट? कृतिका व्हाट आई शुड रिपीट? अच्छा देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 20 परफेक्ट स्क्वायर निकालो. फ्रॉम, आई सेड फ्रॉम रोल नंबर 1 to 20 विल गो टू ट्रिप. तो इसका मतलब 1 रोल नंबर भी जाएगा, 20 भी जाएगा और उसके बीच के सारे जाएंगे. और अगर मैं बोलूं बिटवीन रोल नंबर 1 to 20 विल गो टू ट्रिप. बिटवीन रोल नंबर 1 to 20, बिटवीन उनके बीच बीच के रोल नंबर, इसका मतलब रोल नंबर 1 नहीं जा रहा, रोल नंबर 20 नहीं जा रहा. इफ इट इज रिटन फ्रॉम 1 to 20 तो आई एम कंसिडरिंग 1 ऑल्सो. मैंने 1 को भी लेना है. परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 1 है, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, इवन 9 एंड इवन 16. हमें 1 to 20 के बीच में ये वाले परफेक्ट स्क्वायर मिले. तो फेवरेबल केस इज 4, टोटल 20 एंड आंसर इज 1/5. सिमिलरली 1 to 20 के बीच में अगर 2 के मल्टीपल्स लेने हैं, यू कैन सी दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. दे आर 10 इन नंबर. तो फेवरेबल केस इज 10, टोटल इज 20. सो आंसर इज 1/5. एम आई क्लियर कृतिका? सो एनी क्वेश्चन कैन बी देयर लाइक दिस. जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं. हर टीचर अपने हिसाब से मतलब फ्रेम कर सकते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पे आ जाए मल्टीपल ऑफ 5 एंड देन अकॉर्डिंगली, जैसे कि यहाँ पे आ जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर व्हिच इज लेस देन 15, देन अकॉर्डिंगली यू विल चूज द नंबर. आपने सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के देखना है कि कौन से नंबर्स हमारे फेवरेबल केसेस बन रहे. टोटल अच्छा अगर बिटवीन 1 to 20 हो फिर कोई मुझे बता सकता है टोटल केसेस क्या बनेंगे? What will be the total cases if I'm writing between to 120? Raise your hand. Tanish. Yes, Tanish, you tell. Ma'am, 18. Total cases will then become 18 because when I'm talking about between 1 to 20, I'm not including 1, I'm not including 20, and in between 1 to 20, I know that there are 18 numbers. So favorable cases will be 18 and total will be 20 and the answer will be accordingly 18/20. तो ये बच्चे मैंने अलग अलग तरह के आपके पास सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. एनी क्वेश्चन कैन बी देयर ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी फ्रेम. तो आपको इसको अकॉर्डिंगली करना है. एक बॉल्स वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं. A bag is containing 5 red ball, 6 yellow ball and 9 green ball. Yes, Chabuji, what do you want to ask?
जपजी एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में कार्ड्स वाले में करवाया था और वाली प्रॉपर्टी हुई किंग और रेड, आप इसमें भी वैसे करवा सकते हो? वो मुझे समझ नहीं आया था। नहीं, मतलब वो मैं कार्ड्स में करवाऊं कि किसके नंबर्स में करवाऊं? मैम आप इसमें भी करवा सकते हो, मुझे बस समझ नहीं आया था, आप फिर से समझा दो। मैं दोबारा किंग और क्वीन से भी कर, क्वीन और ओ वाले से भी करवा देती हूँ। एंड वाला समझ नहीं आया कि और वाला? और वाला है। और वाला नहीं समझ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन और रेड और ब्लैक, या तो क्वीन हो या फिर काली हो, दोनों चीजें चलेंगी। तो यू विल फाइंड वन कैरेक्टरिस्टिक, अगर क्वीन है तब भी इसको ले जाओगे साथ, अगर ब्लैक इन कलर है तब भी ले जाओगे साथ, ठीक है? सो हाउ मेनी क्वीन आर देयर? देयर आर 4 क्वीन, ठीक है? नाउ ब्लैक कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 26 ब्लैक है, उसमें से 2 ब्लैक पहले जा चुके हैं क्वीन वाली कैटेगरी में, क्योंकि 26 ब्लैक में 2 क्वीन भी तो ब्लैक पड़ी है ना, वो पहले चलेगी। तो ब्लैक कितने बचे? 24। तो फेवरेबल केसेस 28। जब जी, एम आई क्लियर? यस मैम। So see, there are certain red, yellow, and green ball in a bag. Child is selecting one ball at random. What is the probability of getting green ball? सबसे पहले आपको इनका टोटल करना पड़ेगा. Total is 20. Green ball is favorable cases over total cases. 9/20. Green ball का आंसर हमारे पास आ गया 9/20. That means favorable cases over total number of cases 9/20. Suppose उसने बोला probability of getting not green ball, non green ball. नॉन ग्रीन बॉल का मतलब होता है ग्रीन बॉल नहीं. अगर ग्रीन बॉल नहीं तो कौन सी बची? येलो एंड रेड. तो फेवरेबल 11, टोटल 20. ठीक है? नॉन ग्रीन बॉल मीन्स ग्रीन बॉल को he is not opting, he is not selecting. Only the 2 colors are being selected, that is red and yellow, and total of red and yellow it becomes 11. So this is 11/20. Favorable cases is 11 and the total cases are 20. Non green ball. Suppose the probability of red and yellow, red और yellow, यानी कि बॉल या तो रेड हो या येलो. रेड एंड येलो, एक बार में रेड और येलो 2 कलर की नहीं हो सकती. रेड और येलो, तो इसमें कौन सी फेवरेबल आएंगे? 5 रेड 6 येलो, टोटल 11 एंड फेवरेबल 11 and total 20. This is answer. So this is all about with all the questions, all type of questions of probability we have discussed. The questions based on coins, the questions based on dice, the question based on, you can say, cards, and the question based on slips. Slips are numbered from 1 to 20 as a question भी है आपकी बुक में. Or the question based on, you can say, balls and etc. So all kind of questions we have discussed. Yes, Jen, what do you want to ask? मैम मुझे मैम कार्ड्स नहीं समझ आया मैम. जैसे 20 तो मैम नंबर वाले कार्ड्स हो गए, और मैम 4 मैम 2 एसेस और 2 मैम वो किंग एंड क्वीन वाले हो गए. तो मैम वो उसमें हम कैसे करेंगे? वो तो 24 हो रहा है टोटल उसका. ये जो और वाला, जो किंग और रेड वाला? नो मैम, मुझे पूरा ही नहीं समझ आ रहा कि 26 रेड कार्ड्स कैसे हुए हैं. 26 रेड कार्ड्स कैसे होते हैं ये नहीं पता चलता. आप ऐसा करो, आज मार्केट से जाके एक पैक ऑफ कार्ड खरीदो, फिर आपको समझ आएगा. देखो बेटे, 13 तक के नंबर रेड कार्ड्स के होते हैं. पैक ऑफ कार्ड में 13 नंबर्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रेड कलर के. ठीक है? और उसको बोलते हैं हम डायमंड. एंड 13 ही रेड और होते हैं जिसमें हार्ट बना, हार्ट्स. ठीक है? इसको हम बोलते हैं पान का पत्ता, और इसको हम बोलते हैं ईंट का पत्ता, डायमंड. 13 ईंट के पत्ते हो गए, 13 हो गए हार्ट्स के जिसपे हार्ट बना हुआ है. नंबर 1 to 13 ही है. तो टोटल रेड कार्ड कितने हुए? 26 ही हुए. हाँ जी जयंत, इसी तरह से टोटल ब्लैक कार्ड 26 होंगे. यस जयंत. मैम नंबर्स तो मैम 1 to 10 नहीं होते हैं कार्ड, पैक ऑफ कार्ड में नंबर 1 to 10. हाँ ठीक है, 1 to 9 सिंपल नंबर, 1 to 10 सिंपल नंबर,
और 11 को हम कहते हैं जे, 12 को हम बोलते हैं क्वीन और 13 को हम बोलते हैं किंग। जैक, क्वीन, किंग। हाँ जी जयंत, किधर गया जयंत? जयंत, डोंट गेट योरसेल्फ म्यूटेड इफ यू वांट टू गेट द थिंग्स इन बेटर वे। मैम अब समझ आ गया मैम, वो डबल हो जाएंगे तो फिर वो 26। हाँ, मैम मैं उनको साइड में मैम कर रहा था, मुझे लग रहा था 10 तक ही होते, फिर वो वक्रे होते हैं। 10 वाले को हम 10 तक नंबर होते हैं, 11 वाले को हम जे बोलते हैं, 12 वाले को क्यू और 13 वाले को के। इज इट ओके? ओके मैम। अच्छा लगता है, वो अपनी क्वेरीज आप पूछते हो। गुड, कीप इट अप, राइट? कीप मेंटेनिंग दिस हैबिट, ओके?